Hello viewers, once again welcome to all of you in my YouTube channel Study Hour. So today we are going to discuss two main things. One is multiplication with a special type of number, that is the number in which digit 9 is repeated, maybe one time, two time, three, four, like that. And the second thing which we will discuss, multiplication of any number with any digit number in shortcut way to save your time. So without wastage of time, let's start. Suppose you have some situation where you have to multiply. Let me write down some example. Suppose you have to multiply 4, 5, 3, 2, 1, 6 into 999 and then 9. This is the situation, this is the case first, you can say. In the same way, if we write down some more example like 5321 into 999. One more type of case where you have to multiply a given number 489 into 99, and after that randomly if you have to multiply any two number with any digit of number. Suppose you have the situation where you have to multiply 87632 into 124 or whatever the number you may take. The main motto is to understand the concept how you minimize the time while multiplying two number. So if you see the case first, here is three different type of situation in case of number 9. The first case where the number which you are multiplying with the repeated digit 9 number, the number of 9 is same as the number of digit in the number. Like here if we talk about the given number is this 453216. It means 1 2 3 4 5 6 digits are there, and in the same way you can see 3 9 are there. It means case first, when the number of 9 is same as the number of digits in the given number. Case 2, as you see, the number of 9 is less than the number of digits in the given number. And third case, here you take some more 9 as the given number is 4899, which consists of 3 digits. So you take 5 or 6 digit. This is the three different case. First, number of 9 is same. In second case, number of 9 is less than the number of digits in the given number. In third case, the number of 9 is more than the number of digits in the given number. And after that, because this is the special case, so after discussing this, we move to this situation. This is random situation in which where you multiply any number to any digit number in a single line. This is the random situation. You can also call it a general rule of multiplication. If you are interested, then you must have to see the video at the end. Only then you get something. Otherwise, only you kill your time and nothing will be fruitful. So once again, I advise you, if you are interested to understand the concept of these things,
So you must watch the video till the end. So here in case of 9, if we talk about 9, there are three cases. The first case, if the digit 9 repeated, as many times as the digit in given number. This is the case first, where you have to multiply the given number with the repeated digit 9. तो इस पहले वाले एग्जांपल को पहले सॉल्व करके देखते हैं. द गिवन एग्जांपल, आई हैव टेकन द नंबर 4 5 3 2 1 6. Then count the number of digits 1 2 3 4 5 6. So here you write 6 times 9. Suppose this is the case where you have to multiply a given number by the same number of time of 9. So this is the very simplest way, this is the simplest situation where you can predict the answer orally without use of pen and pencil or any paper. Orally you can say what will be the answer. How it is possible? For that, just subtract the given number by 1, or you can write its predecessor. In other words, you can write its predecessor, or you can simply subtract 1. So if you subtract 1 from the given number reduced to 6 minus 1, that is 5. Then 1 2 3 5 and then 4. Then after that, what you have to do? Simply you have to make all these number to 9. इन सारे नंबरों को आपको 9 बना के आगे के स्टेप में लिखते चले जाना है. That will be your answer. So 4, if you want to make 4 to 9, then you must have to add 5 with it. So 4 में अगर आप 5 प्लस करोगे तो आपका 9 बनेगा, और इन सारे डिजिट्स को आपको 9 ही बनाना है. तो 4 को 9 बनाने के लिए आपने क्या किया? 5 प्लस कर दिया, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 5. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को. 5 को आपको 9 बनाना है, इसमें आप ऐड करोगे 4. फिर 3 को आपको 9 बनाना है, इसमें आप ऐड करोगे 6. 2 को आपको 9 बनाना है, इसमें आप ऐड करोगे 7. 1 को आपको 9 बनाना है, इसमें आप ऐड करोगे 8. 2 2 2 6. I think the answer is completed. 5 4 6 and 5 is also there. 6 डिजिट तक लेनी है, तो इसको अंडरलाइन कर देते तो किसी तरह का कन्फ्यूज़न आपके पास ना होता. अगर इसको अंडरलाइन कर दें तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि ये कोई सा डिजिट छूट रहा है या नहीं. 4 को 9 बनाने के लिए हमने इसमें 5 ऐड किया, नो कन्फ्यूज़न. आफ्टर दैट 5 को हमने 9 बनाने के लिए 4 ऐड किया, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू. 3 को हमने 9 बनाने के लिए 6 ऐड कर दिया. देन इन द सेम वे 2 added by 7 gives you 9. 1 added by 8 gives you 9.
then 5 added to 4, 5 added to 4, 5 added to 4, sorry for it, 5 में आपको ऐड करना है 4 9 बनाने के लिए. So in this way your answer is completed. You can take any other example to verify it. I hope the concept is clear to all of you. Now moving on to second case. Second case is slightly difficult, means ki difficult among these three cases. So let's first discuss case number 3, where the given number having less number of digits that you are multiplying with the multiples of 9. तो इस तरह की सिचुएशन अगर है आपके सामने है कि 4 8 9 9 और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 5 टाइम्स 9 से, 1 2 3 4 5 या 6 भी ले सकते हैं. तो इस तरह की इस कंडीशन में जब नंबर में डिजिट्स कम होते हैं और 9 ज़्यादा होते हैं, तो इसमें जितने 9 कम होते हैं उतना जीरो आप यहाँ पे बढ़ा करके नंबर ऑफ डिजिट्स को सेम कर लेते हैं. यहाँ पर 5 टाइम्स 9 है, तो यहाँ पर आप उसको 5 डिजिट्स का नंबर बना लेंगे बाय एडिंग 1 मोर जीरो, like this. So again this case third is same as case 1. इस तरह से अगर आप जीरो को लिख करके दोनों नंबरों में डिजिट्स की संख्या बराबर कर लेते हैं तो ये केस 1 की ही तरह हो जाता है. और फिर से पहले की ही सिचुएशन आप लगा देते हैं, पहले की ही कंडीशन लगा देते हैं. यू हैव टू राइट डाउन द प्रीडिसेसर of this given number, or in other word you can subtract 1 आपको सब्ट्रैक्ट करना के लिखना है या आपको उसका प्रीडिसेसर लिखना है. तो 9 से 1 माइनस करोगे आपका हो जाएगा 8, देन 9, देन 8, देन 4 और ये जीरो जो आपने लिखा था. अब पहले की तरह जीरो को आपको 9 बनाना है तो आप जीरो में 9 ऐड करोगे, फिर 4 को आपको 9 बनाना है तो आप इसमें 5 को ऐड करोगे, 8 को आपको 9 बनाना है तो आप इसमें 1 ऐड करोगे, 9 को आपको 9 बनाना है तो कुछ नहीं आपको ऐड करना है, आपको सीधे जीरो ही लिखना है. फिर 8 को आपको 9 बनाना है तो आपको 1 प्लस करना पड़ेगा. और इस तरह से 1 2 3 4 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 डिजिट, ये हो गया आपका आंसर तैयार. अब चलते हैं थर्ड केस की तरफ. कैमरा में कर देता हूँ ऑन ताकि आप लोग मेरी शक्ल भी देख सके. और फिर से ले लेता हूँ एक नया पेज. चूँकि केस नंबर 3 जो है ये इन सब में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसलिए इसको ज़रा आप ध्यान से समझने की कोशिश करें. जहाँ पर 9 की संख्या कम है और ये दिए हुए नंबर में डिजिट्स ज़्यादा है. सो लेट्स राइट डाउन द केस थर्ड और एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. सपोज करो आपको मल्टीप्लाई करना है 4 8 3 2 1, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, इतना ही रहने दीजिए क्योंकि जनरली इन प्रैक्टिकल
वी हैव टू मल्टीप्लाई मैक्सिमम 5 और 6 डिजिट नंबर, इससे ज़्यादा कभी आते नहीं हैं कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम में। ये नहीं कि 10 नंबर का और 15 नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, पैटर्न आपका हर जगह अप्लाई होगा, आप चाहे जैसे अप्लाई करिए, लेकिन 5 to 6 डिजिट नंबर ही मैक्सिमम यूज होता है, तो इतना ही लेके चलते हैं। और यहाँ पर सपोज करो आपको दिया हुआ है 3 times 9 या 2 times 9 या 4 times 9, कहने का मतलब कुछ भी 9 दिया हो, ये नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे 5 है तो 5 से कम ही 9 रहेंगे, 3 9 हो या 4 9 हो या 2 9 हो। तो once again I am repeating the same thing, this method is slightly difficult to understand, so you can pause the video, practice it 1 or 2 times simultaneously while watching the video so that your concept will be clear at the same time. And if you have any query, any doubt, you can write in comment section. I will try to remove your query with my best effort. So this is the condition. तो यहाँ जितने 9 हैं, यहाँ पर आपको 0 नहीं बढ़ाने हैं, ध्यान रखना है कि आप सोचोगे कि यहाँ 3 9 है और यहाँ पर 5 डिजिट है तो 2 0 उसको आगे करके पहले जैसा कर लेते हैं, योर आंसर विल बी रॉन्ग। उस तरह की सिचुएशन में आपकी आंसर हो जाएगा गलत, इसलिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। 3 डिजिट दिए हुए हैं तो यहाँ पर 3 डिजिट आप यहाँ पे बार लगा दो इसके ऊपर, मतलब अंडरलाइन कर लो। यू मे सेट यू पुट ए वेनिकुलम ब्रैकेट और बार ओवर 3 डिजिट नंबर। अब बाकी जो बची हुई डिजिट है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो पा रहे हो 48 बचा हुआ है, इसका सक्सेसर या इसमें 1 ऐड करके आप रिमेनिंग नंबर में माइनस कर दो। तो 48 का सक्सेसर जब आप लोगे, या दूसरे शब्दों में 48 में 1 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 49। तो यहाँ पर लिख दो 49 फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी नंबरों में इसको कर दो माइनस। जितने 9 हैं उतने डिजिट्स के ऊपर आपको बार लगाना है, बाकी बचे हुए नंबरों का सक्सेसर लेना है, उससे एक आगे वाला नंबर लेना है और फिर उस नंबर को सब में से माइनस कर देना है। यहाँ देखो 1 माइनस 9 मीन्स कि 11 माइनस 9, यहाँ पे हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बचा 1, कैरी कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो इसमें से 4 माइनस कर दोगे आप, किसमें से 11 से, तो ये हो जाएगा 7। यहाँ बच गया 2, आप इसको लिख दो 2। ये हो गया 8, ये हो गया 4। तो 4 8 2 7 2, ये कैसे आ गया? 48 के सक्सेसर को, मतलब कि 49 को आपने इन नंबर से माइनस कर दिया, जो नंबर दिया हुआ था उसी से आपने माइनस कर दिया। तो अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो 9 का मल्टीपल है 99 होगा या 9 होगा या 9999 होगा, इस तरह से 9 के रिपीटेड डिजिट वाले नंबर होंगे। तो इसका बेस नंबर आपको लेना है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं इसका सक्सेसर आपको लेना है। इसका बेस होगा जो 10 का मल्टीपल होगा, मतलब कि 1000। बेस भी आप कह सकते हो, इसका सक्सेसर भी कह सकते हो 1000, क्योंकि 999 का नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में जब वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा 1000। उसी तरह से अगर 99 है तो आपको देखना है 100, 9999 है तो आपको देखना है 10,000, मीन्स कि सक्सेसर
अगर आपको बेस ना समझ में आ रहा हो आप सक्सेसर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका करना क्या है बेस का, इसका करना ये है कि ये जिस नंबर पे आपने शुरू में बार लगा के रखा था 321 में क्या ऐड करें कि ये हो जाए 1000। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। इस नंबर को आपको 1000 बनाना है या बेस नंबर बनाना है बाय एडिंग सम नंबर। तो 321 में आप क्या ऐड करोगे कि ये बन जाए 1000, वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। तो ये हो जाएगा 679। इन दोनों को आप प्लस करके देख लो, 1000 आ रहा है, 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10। इस नंबर को आपको बेस नंबर बनाना है। जिस नंबर को ऐड करने पर ये बेस नंबर बनेगा वही नंबर आप यहाँ पे लिख दो, ये हो जाएगा आपका आंसर तैयार। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। वन मोर एग्जांपल यू कैन टेक। एक बार नंबर ले लेते हैं, सपोज करो 562 831, इसको ले लेते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से 9999 से। 4 बार 9 ले लिया है और यहाँ पर है 6 बार 6 डिजिट्स वाले नंबर हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना कैसे है, 4 डिजिट है तो 4 नंबर के ऊपर आपको लगा देना है बार, लग गया बार यहाँ पे। बाकी बचा हुआ नंबर है 56 का प्रीडिसेसर आप लोगे या एक आगे वाला नंबर लोगे या 1 प्लस करके नंबर लोगे, ये हो जाएगा आपका 57। इसको करना है माइनस। 11 से 7 माइनस करोगे ये हो जाएगा 4। 12 से 5 माइनस आप करोगे ये हो जाएगा 7। यहाँ आप लिखोगे 7, 1 कैरी दे दिया था तो 1 कम हो गया, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। आई थिंक अप टू दिस स्टेप ऑल द थिंग्स इज क्लियर। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, you have to simply identify the successor of this digit or the second digit. So the successor of the digit is 9999, that means successor will be 10,000। इसके आगे वाला नंबर 10,000 होगा। अब इसका क्या करना है, इसका करना सिर्फ इतना है कि ये जिस नंबर पे आपने बार लगा के रखा है उसको बना देना है 10,000 बाय एडिंग सम नंबर। तो 2831 इसको बनाना है आपको 10,000। क्या ऐड करेंगे, तो आप इसमें ऐड करोगे 7,169। ये आपको वर्बली इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप क्या ऐड करेंगे कि ये आ जाए, ये आपको पता होना चाहिए। वनली ये तो अभी प्रैक्टिस आपको समझाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट इस वजह से इतना स्लो बताया जा रहा है। 2 बार 4 बार 10 बार जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, जब आप हैबिचुअल हो जाओगे तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख सकते हो कि हाँ ये चीज़ें थोड़ी सी माइनस करनी पड़ेगी आपको। माइनस करके ये आप लिखोगे, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेसिंग जो है वो कम समय में धीरे धीरे आपकी टाइमिंग कम होती जाएगी। सो दिस इज़ द आंसर। इफ़ यू वांट टू चेक, you have calculator or the device which you are using is sufficient itself to check the answer. So I hope you like this video। और जो हमने कहा था रेंडमली किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका भी कॉन्सेप्ट है, उसको अगले वीडियो में देते हैं आपको। सपोज करो जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, यू हैव टू मल्टीप्लाई एनी डिजिट नंबर टू एनी डिजिट नंबर।
5 6 3 8 9 2, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 4 3 2 1, इतने से मल्टीप्लाई करना है। तो वन लाइन में कैसे आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे? बाय यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स। इसको भी आप सीख सकते हो, लेकिन वो अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ही इतना लंबा हो गया है, इसलिए मैं इसको करता हूँ अब ख़त्म। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।